Assalamu alaikum class. Now I will tell you about importance of magnesium as a mineral, as that of the calcium and phosphorus. It is also a very important mineral in the diet that is needed by our nervous system and by our body cells to maintain their normal integrity and functions. Now, magnesium as a mineral is distributed in the body, mainly in the tissues such as body fluids, the blood, muscles and bones and teeth. Now, in the bones, 70% of the total body magnesium is sequestered, as that of the calcium and the phosphorus, in which maximum quantity was sequestered in bone and teeth. So mainly magnesium is part of the structural elements of the body. The rest of the magnesium is present in body fluids such as cerebrospinal fluid, blood and muscles, where it takes part as a cofactor and as a structural factor. And total magnesium in an adult is about 20 grams. The concentration of the magnesium in the intracellular fluid is higher than the extracellular fluid. So सेल के बाहर जो इसकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा है as compared to inside of the cell. So when we have to move the magnesium inside the cell, it will be energy requiring or the cofactor requiring process. Now serum level is 2 to 3 milligram per deciliter of the magnesium. This picture is showing the sources of the magnesium that will be easy to remember. The above line is showing the maximum incorporation of the magnesium. वो चीज़ें जिनमें मैग्नीशियम ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है. वन ऑफ देम इज नट्स, देन बीन्स एंड wheat. The people who cannot afford the nuts and beans, as these are costly, so wheat is the staple diet in our country and Asians. So wheat has got enough amount of the magnesium required for the normal functioning of our body. Similarly, milk, eggs also have to some extent magnesium in them, and spinach, figs and oranges also have got magnesium as ample source. Now that was all about the sources and the incorporation of the magnesium in different sources, and maximum quantity of magnesium from its sources is in wheat. Now absorption of the magnesium from an average diet is about 50%. That is, half of the magnesium from the present in the diet is absorbed. That is maximum absorption as compared to its counterparts of the calcium and the phosphorus, जिसमें सिर्फ 2 to 3% या 1/3 absorption थी. इसमें half of the magnesium present in diet is absorbed, and the degree of absorption increases on low magnesium diet. जितनी डाइट में मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम होगी उतनी ज़्यादा इसकी एब्जॉर्प्शन होगी in order to maintain the normal magnesium levels inside the blood and the serum. Now absorption decreases on high magnesium diet. जितनी डाइट में मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगी तो it is one of the auto-regulatory mechanism that the magnesium's absorption decreases in order to avoid its toxicity and its side effects. Now absorption is from the small intestine, and the regulation is mainly the function of the kidneys, as that of the phosphorus जिसमें रेगुलेशन किडनी से हो रहा है. इसी तरह से मैग्नीशियम इज मेनली रेगुलेटेड बाय द किडनीज, एंड इन द किडनीज अ हार्मोन नोन एज एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द मैग्नीशियम फ्रॉम द किडनी. ये कैसे करेगा रेगुलेट के? जैसे ही एल्डोस्टेरॉन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी. इसी तरह से जब एल्डोस्टेरॉन की क्वांटिटी कम होगी तो मैग्नीशियम की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी.
बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था इंटेस्टाइन में, जितनी मैग्नीशियम डाइट में ज़्यादा थी उतनी ही उसकी एब्जॉर्प्शन कम हो रही थी। इसी तरह का मैकेनिज्म किडनी में है कि जितना एल्डोस्टेरोन ज़्यादा है उतनी ही रीएब्जॉर्प्शन कम है, in order to regulate the level of the magnesium inside the blood. So these one of regulatory mechanism was auto-regulatory absorption, and the other regulatory mechanism of the magnesium in the body is kidney mediated through the hormone aldosterone. These are the daily requirements of the magnesium in the diet in an infant, children, adolescents and pregnant ladies. So we are mainly concerned with adult men and women, in which the requirement is around about 300 milligram per day. Children में obviously क्वांटिटी इक्वल चली जाती है, बिकॉज वो ज़्यादा मोबिलाइज्ड रहते हैं, उनमें बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन हो रही है, सो इनकॉर्पोरेशन इज नीडेड इन हाई क्वांटिटी ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स सच एज मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. Similarly, in pregnant ladies, there is a double burden upon the human body as that of the mother and the fetus, which have got the new system to rebuild. So उसमें quantity और भी ज़्यादा daily requirement की form में है, that is 450 milligram per day. Now we come to the functions of the magnesium. The magnesium, as we have seen, is one of the structural elements. Maximum quantity about 70% is incorporated into the bones. So other than the structural elements, it is very important for the stability of the nerves. So it controls excitability of the nerves and neuronal potentials. तो ये इसका फंक्शन है जो इसकी इम्पोर्टेंस और इसकी डेफिशिएंसी और एक्सेस को एक्सप्लेन करेगा. बिकॉज इन द डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम द एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स विल नॉट बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, और उसमें नर्व्स की इरिटेबिलिटी आएगी और नर्व्स की हाइपर एक्साइटेबिलिटी आएगी, इंसोम्निया आएगा, नींद के डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर्स आएंगे और ब्रेन फंक्शनल डिसऑर्डर्स आएंगे. Similarly, magnesium is a co-factor of certain enzymes, और बहुत सारी जगहों पे मैग्नीशियम की एज अ को-फैक्टर जरूरत होती है इन सर्टन मेटाबॉलिक साइकिल्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स. तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स का को-फैक्टर मैग्नीशियम है, और जब भी को-फैक्टर डेफिशिएंसी होगी तो देयर विल बी स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन, वो एंजाइम्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. सो एंजाइम एग्जांपल इज एंजाइम ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, प्योरीन्स, पायरिमिडीन्स वगैरह का जितना मैकेनिज्म है वो इस पे डिपेंड करता है. अब ये एंजाइम्स के नाम दे दिए गए हैं फॉर इम्पोर्टेंस एंड फॉर रिमेम्बरेंस, के याद रहें. बिकॉज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हेक्सोकाइनेज, जो कि फर्स्ट स्टेप को ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट कर रहा होता है, इट इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑल्सो. तो हेक्सोकाइनेज जो कि लिवर में भी प्रेजेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम. सो इसकी फंक्शनिंग के लिए को फैक्टर मैग्नीशियम है. सिमिलरली फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, जो कि इसके मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में फॉस्फोफ्रुक्टो बहुत ज़रूरी है फ्रुक्टोज के, ये डिपेंडेंट है अपॉन मैग्नीशियम. सिमिलरली पायरोवेट काइनेज एंजाइम भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं उनको रेगुलेट करता है. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी रेट लिमिटिंग स्टेप्स है ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में से, और ये भी मैग्नीशियम पे डिपेंडेंट है. सिमिलरली थायोकाइनेज, जो कि एंजाइम है, सबस्ट्रेट लेवल की एनर्जी प्रोडक्शन भी करता है, और ये एंजाइम टीसीए साइकिल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी मैग्नीशियम पे डिपेंड करता है. इसी तरह से बाकी जो एंजाइम्स हैं, ग्लूटामिन सिंथेज एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेज, ये सब एंजाइम्स डिपेंडेंट है upon magnesium as their co-factor. So magnesium has got the controlling ability of the enzymes, और magnesium की deficiency में हमारे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म्स, हमारे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म्स और लिपिड के मेटाबॉलिज्म, इसी तरह से प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म्स और हीम सिंथेसिस के पाथवेज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. और न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी जब डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर देयर विल बी हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स. अब रिड्यूस्ड मैग्नीशियम लेवल्स आर नोन एज हाइपोमैग्नीसीमिया
कॉज क्या होगा इनका कि जितने रेगुलेटरी मैकेनिज्म मैग्नीशियम के थे उसमें एक ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन से, डाइटरी एब्जॉर्प्शन से मैग्नीशियम रेगुलेट हो रही है, और दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें किडनी से एल्डोस्टेरॉन से मैग्नीशियम रेगुलेट हो रही है। तो ये दोनों रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब होंगे तो हाइपोमैग्नीसीमिया विल बी रिजल्ट। वन ऑफ द कॉज इज अल्कोहलिक्स। अल्कोहलिक्स में हाइपोमैग्नीसीमिया होता है ड्यू टू हाई एनर्जी टर्नओवर, और क्रॉनिक डायरिया में ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड लॉस फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी और लॉस्ट हो जाएगी इंटेस्टाइन और बाकी इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर के सेल मेम्ब्रेन्स डिसरप्शन और डेफिशिएंसी से भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इसी तरह हाइपर पैराथायराइड लेवल, जब थायराइड लेवल ज्यादा होगा, पैराथायराइड लेवल ज्यादा होगा ड्यू टू कैंसर और ड्यू टू सर्टेन डिजीजेस या ड्रग्स, तो क्या होगा कि पैराथायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द increased reabsorption of the calcium from the renal system. सिमिलरली वो इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम के साथ साथ रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट कर रहा होता है, और उसी के साथ रिड्यूस्ड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द मैग्नीशियम भी होगी। तो हाइपर पैराथायराइड लेवल किडनी के सारे इलेक्ट्रोलाइट मीडिएटेड फंक्शन डिस्टर्ब करेंगे। इसी तरह से एल्डोस्टेरॉन वाज द मेन रेगुलेटिंग एंजाइम एट द लेवल ऑफ द किडनीज ऑफ द मैग्नीशियम, और ये क्या करेगा कि जितना एल्डोस्टेरॉन लेवल इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ द एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, तो क्या होगा कि मैग्नीशियम के लेवल कम हो जाएगा बिकॉज इसकी रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। Similarly, increased magnesium levels are known as hypermagnesemia, and hypermagnesemia is mostly seen in renal patients and renal failure. As I have already told you कि renal patients जो हैं और renal failure के patients dependent हैं upon dialysis, और dialysis में जो dialysate है, जो dialysis का fluid है जिसने उसका पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, उस फ्लूइड के अंदर हमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, उसके इलेक्ट्रोलाइट सब मेंटेन करने पड़ते हैं। और इस फ्लूइड की रेगुलरिटी के अलावा रीनल फेलियर के पेशेंट्स की डाइट जो होती है वो मॉडिफाइड होती है, स्पेशल डाइट होती है, और उस डाइट के अंदर सारे मैग्नीशियम, फॉस्फेट, विटामिन डी, सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम मेंटेन हुए होते हैं, और उनकी सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल को हमने रेगुलेट करना होता है। So this was all about the importance and the important functions of magnesium.